Hello, good morning students. Welcome back to this science class. Children, as you know, we are studying about chapter number 6, that is soil. Previously, we have completed our explanation part and also our spiral work. Today, we are continuing our chapter by doing the textbook exercise. In first, there are the textbook exercise section A, that is the class response. In the class response, there are two parts A and B. We have to do these part, that is the question answer in our notebook. So first on the oral question, oral response, first question is this: why is soil valuable to us? कि soil हमारे लिए क्यों valuable है? Soil is valuable to us because the plants and all the plants grow in the soil, even it's provide house to the animals. Okay, now next is how do trees help to prevent soil erosion? Soil erosion means कि removing of topsoil, जो topsoil which is good for the fertility of the plants, जो plants की fertility के लिए बहुत अच्छी होती है, when it is removed, like the humus will remove which make the soil fertile, so the plants are the only things which prevent the soil erosion. So the roots of the trees hold the soil tightly. जो roots होती है trees की, they are holding the soil tightly and help to protect the soil from erosion. और वो उनकी help करता है, उनको soil erosion से protect करता है. Why do different places have different types of soils? कि जो different types of places हैं वहाँ different types की soil क्यों होती हैं? So different places have different types of soil because the types of soils depend upon the kind of rocks from which it is formed. So जो rocks, जो soil है, you know this soil formed due to the breakdown of the rocks into tiny pieces. So it's all depend about the kind of rock. अब जब वो rock अलग होगी तो definitely the soil is differ, वो soil भी अलग होगी. So it's all depend about the formation of soil. So number B, that is the science quiz. Name 3 things present in the soil. 3 चीज बताओ जो soil में present रहती है. Water, air and the humus. Okay. So previously in the class 3 you already learned about that the air and the water is present in the soil by activities, different activities for air and water. So you have to write water and air and even humus which is mixed with the soil and make it fertile. Number 2, which soil is used to make pots? कौन सी soil का use pot बनाने में use करते हैं? That is the clay soil which is formed by, which contains only clay. उसमें mostly क्या होता है? Clay होता है. Next is give one way to prevent soil erosion. एक ऐसा way बताओ. Only one way you have to write here to prevent the soil erosion. That is the afforestation. Afforestation means planting more and more plants. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ द प्लांट्स. नेक्स्ट इज वर्कशीट. नेक्स्ट क्या है? वर्कशीट है जो कि हम कहाँ करते हैं? ओनली टेक्स्ट बुक में. सो फर्स्ट इज द MCQs. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन डेजर्ट. कि डेजर्ट में कौन सी सॉइल फाउंड होती है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी. So it is the sandy soil because the particles of the sand are large or it cannot hold the water but it can trap the air. Number 2, the soil that cannot hold much water. कौन सी soil है जो ज़्यादा पानी hold नहीं कर सकती है? That is again the sandy soil, जो पानी को hold नहीं कर सकती because of the spaces between the particles of sand. Sand की जो space होती है particles में, उसके कारण वो पानी को hold नहीं कर पाते हैं. That is next is B, filling the blanks with the help of given words. First, rock breakdowns to form. Rock जब break होता है it's form soil और humus. It's form soil and humus कैसे form होते हैं? It's form or it is the remains of the dead plants and animals which mix with the soil and that time it's formed. Now next is Number 2, the removal of fertile topsoil. जो fertile topsoil जब remove हो जाती है, what does it call? Soil erosion या soil conservation? It is soil erosion. When it is talking about the removal of topsoil, it is the only soil erosion. When it is talking about protecting
द टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करना, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज 3, लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ. लोमी सॉइल में क्या होता है? बोथ क्ले एंड लोम और सैंड. लोम कोई पार्टिकल्स नहीं होते, ओनली द सैंड आर द पार्टिकल्स, सो यू हैव टू राइट ओनली सैंड देयर. नंबर 4, सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ. सॉइल किससे बना है? इज कंपोज्ड ऑफ डैश सैंड क्ले पार्टिकल्स, लोम या ग्रेवल. ग्रेवल आर द स्मॉल स्टोन, सो इट कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल. आपको ग्रेवल लिखना. लोम इज अ टाइप ऑफ सॉइल. नंबर 5, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन. कि द प्रोटेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था प्रोटेक्शन वर्ड इज यूज फॉर कंजर्वेशन, सो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड soil conservation. So we have, it's written, we have to write the soil conservation. Next है match the following. So column A is here, column B is here. So crop rotation, it is the soil conservation step होता है. soil conservation के लिए way है ये. Then clay soil. So clay sand it can hold a water, a lot of water. Clay soil क्या करती है? पानी को बहुत ज़्यादा hold करती है. And loamy soil it contains both. इसके अंदर सैंड भी होता है, क्ले भी होता है. एंड फ्लड्स आर कॉज सॉइल इरोजन. फ्लड से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज फ्लड्स आर द रनिंग वाटर ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमस. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड इंक्रीज इट्स ग्रोथ. नेक्स्ट इज डी पार्ट, दैट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉइल्स, राइट देयर नेम्स इन द स्पेसेस गिवन. So first soil is sandy soil, second soil is clayey, and the fourth one is the loamy soil, which is good for the growth of the plants. Next we will discuss about the section B, that is very short answer question. First one is name the soil that can hold enough air and water. जो बहुत ज़्यादा enough air भी hold करता है and water भी, that is the only loamy soil which is good for the growth of the plant. और ये air भी hold करता है, water भी. नेक्स्ट है व्हाई डू वी कॉल द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. हम उसको क्या बोलते हैं? जो टॉप मोस्ट हमारी फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल. व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल द टॉप सॉइल. नेक्स्ट है सी, विच सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. कौन सी सॉइल यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में? सो सैंडी सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. विच सॉइल? इट इज द सैंडी सॉइल यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, बिकॉज वो जब सीमेंट में प्लास्टर करते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज सी, आंसर्स द शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन. की क्रॉप रोटेशन क्या होता है? सो क्रॉप रोटेशन इज ग्रोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स. क्या है? ग्रोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मीन्स कि हमें सेम फील्ड में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो करना है. क्यों करना है? टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. हमें उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के वी हैव टू ग्रो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड. नेक्स्ट है गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ सैंडी, क्लेई, लोमी सॉइल्स. तीनों के एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, मतलब फीचर्स लिखने, प्रॉपर्टीज लिखने, जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वाली सॉइल है. Sandy soil cannot hold water, but as water passes through it, particle easily, और उसमें से पानी बहुत easily पास हो जाता है. Clay soil can hold a lot of water. Water does not pass through its particle easily. इनमें से water easily pass नहीं हो पाता है. Loamy soil can hold enough air and water. It is good for growing plants. Loamy soil क्या है? Good for the growing plant. Next है, these are the value based question. So प्रत्युष is the forest minister. प्रत्युष क्या है? forest officer है, sorry minister नहीं officer, who do not only protects these trees from being cut but also plants a tree regularly and takes it proper care. मीन्स कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है प्रत्युष, वो ना कि प्लांट काटने से लोगों को रोकते हैं, इवन वो रेगुलरली प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं. सो हाउ डज डिफॉरेस्टेशन प्रमोट सॉइल इरोजन. कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट्स. ओके, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मतलब फॉरेस्ट को कम करना. सो वो कैसे प्रमोट कर रहा है सॉइल इरोजन? सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, द सॉइल इज एक्सपोज टू विंड and rain which causes soil erosion. You know the trees
होल्ड्स द सॉइल, जो ट्री होती है, जो टॉप सॉइल है उसको होल्ड करके रखती है। व्हेन दे आर कट ऑफ, जब वो कट जाएंगे, सो दे आर अनेबल, नोबडी इज देयर टू होल्ड द टॉप सॉइल ऑफ द सॉइल। सॉइल की टॉप सॉइल होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है, दैट कॉजेज द सॉइल इरोजन। इससे सॉइल इरोज हो जाएगी, मिनरल्स विल फ्लश्ड आउट, मिनरल फ्लोट हो जाएंगे इन द रनिंग वाटर। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम प्रत्युष। हम प्रत्युष से हमने क्या लर्न करना है, वी शुड टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट, हमें अपने एनवायरमेंट की केयर करनी चाहिए एंड सेव ट्री सेव लाइफ। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज वेदरिंग, हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि वेदरिंग क्या होता है और ये कैसे हमारी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ big pieces of rocks into tiny pieces by the heat of the sun, moving air, running water is called weathering. इस process को weathering बोलते हैं। And soil is formed when the weathered tiny pieces rocks mix with organic matter and materials। और soil कब form होती है, जब वो tiny pieces of rocks mix हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, उनके साथ मिक्सड अप हो जाते हैं, दैट टाइम सॉइल फॉर्म। सो व्हाट इज सॉइल, सॉइल इज द मिक्सचर, सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ टाइनी पीसेज ऑफ रॉक्स and the remains of dead plants, dead animals which is mixed into the soil. Next है write any 3 ways by which we can protect soil, कि आपको ऐसे 3 ways लिखने हैं जिससे आप soil को protect कर सकते हैं। What are these 3 ways? So we can protect the soil by following ways. Ways मतलब तरीके, steps. So the number of trees planted should be more than the number of tree cut डाउन ट्रीज। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए, जितने हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उसको ग्रो करना है। वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हमें क्रॉप रोटेशन का मेथड अप्लाई करना चाहिए कि सेम फील्ड में हमें डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है, द ग्रेजिंग एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया। जो एनिमल शेफर्ड ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को हिल्स पे लेके जाते हैं, माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, इवन जो प्लेन्स होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, दे आर गोइंग देयर फॉर द ग्रेजिंग। सो शेफर्ड शुड नॉट ग्रेज दैम एट वन प्लेस, उनको एक जगह पे उनको ग्रेज नहीं करना चाहिए, दे हैव टू स्विच देयर प्लेसेस, उनके प्लेसेस को चेंज करते रहना चाहिए, रोटेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी और जो सॉइल की जो बाइंडिंग होती है प्लांट से वो भी वीक नहीं होगी और काफ़ी टाइम तक उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहेगी। दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 6 soil. So this chapter is over here, explanation is over, question answer is over. Everybody do this work in your notebook and test work as we have done already in our live classes. Okay children, bye bye, take care, thank you.